So Arpit has asked a question, and the question is he wants to know about the reorganization of states, how the states were reorganized into what, how many, into the number of states we have today. So, very good question. Everything happened under the guidance of a person called Sardar Vallabhbhai Patel. There were 500 plus princely states in our country, and as I said earlier, each state was actually a combination of many states. छोटे 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 states क्लब होके कंबाइन होके एक बड़ा स्टेट बनता था. अभी जो बड़ा स्टेट बना है, छोटे 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 स्टेट्स क्लब होके, पहले ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स बहुत सारे थे. सो कंट्रोलिंग वाज वेरी डिफिकल्ट. 565 अगर आज के डेट में स्टेट होते, टुडे इफ यू हैव 565 स्टेट्स, you will have 565 chief ministers. So controlling that 565 chief minister itself is a huge task. Forget about the public. So they thought of combining all the small states and bringing them together under one name. So now the question arose, kaise, how will you combine all the states? The basis that was chosen was not religion. The basis that was chosen was, while division of India, while separation of India, the basis was religion. Pakistan was created for the Muslim peoples and India was created for others, for everyone. Hindu, Muslim, Christian, everyone can stay here, but if you are Muslim, if you want to stay in a separate country, then you can go there. The basis was religion. Therefore, there was a lot of fight. But this time they were very safe. This time the main basis of separation or reorganization of the states, to be precise, reorganization was based on language. That is, it was reorganized on the basis of language. For example, Assam was completely made one because of one language, that is Assamese. Same thing happened with Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, also with Maharashtra, which is Mumbai, which is now Mumbai and the surrounding areas, which is now Maharashtra. Same happened with Gujarat also. So, while reorganizing the states, the first priority was given to the language. Alright, is it clear? Arpit, is it clear? Or anything else you want to know about it? Arpit, is it clear? I'm not getting a feed. Yes, sir, it is clear. Yes, sir, it is clear. Fine. Anyone else? Any doubt you can ask? Anyone else you can ask? Just switch on your audio and you can ask any doubt if you have studied. If you not studied, I'm sorry, you cannot ask. If you have studied, you can ask your doubts. Anything from all the 5 chapters. 6 chapter I have not completed though. The 5 chapters that we completed, you can ask from there. I'm not switching on the audio, nor not asking you to switch on the video, sorry, because yeah, it consumes a lot of data. Many students complain, so we are not switching the audio. Anyone else with any issues regarding the first 5 chapters? Or yes, Sir, can you explain about the left hand party and right hand party, sir? Left hand party and Right hand party, sir. leftist and rightist, you mean? Yes, sir, yes, sir. See, there are two kinds of thoughts. The thoughts are called leftist thought and one is called rightist thought. One gives more concentration on government, यानी कि just like Soviet Republic, Soviet Union, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा. गवर्नमेंट विल हैव एवरीथिंग and the government will help the people, specially focusing towards the poor section of people. Everything will be done for the poor people. They are completely help the poor kind of a group. Another is like more inclined towards entrepreneurship, more inclined towards American type of thoughts,
like everything will be privatized, more of private investment, more of people investing their own money, less of individual मतलब individual, what to say, investment, people do individual investment, people earn their own money, not less, to be honest, and to be very precise, it's like depending more, one gives more importance on government, that the government will do everything or think about the poor and everything than that, and the other class of thought gives more focus on privatization और खुद करो, ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर बेसिस नहीं, खुद करो, मतलब ऊंचा, बहुत ऊपर का सोचता है, और एक थोड़ा बिलो लेवल का सोचते हैं, ग्राउंड लेवल लोगों का सोचता है. सो दिस इज लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, एक को बोला जाता है लेफ्टिस्ट, एक को बोला जाता है राइटिस्ट. क्लियर? Yes, clear. All right, anyone else, any more doubts from anyone? We were doing crisis of democratic order. Crisis of democratic order is the 6th chapter and we have started it. Today we'll be starting a very important part of this chapter. एक second, I just got a message, 1 minute. Yes, can you explain foreign policy? Foreign policy, देखो foreign policy, there are 2 or 3 foreign policy. Which foreign policy you are talking about? कौन सा foreign policy का बात कर रहे हैं आप? मतलब सिर्फ foreign, मतलब बाकी countries के साथ हम लोग का क्या चीज़ को लेकर relation था? Any specific requirements or you are asking in general? Please specify. Sino-Indian मतलब Indian Chinese, मतलब Indian external relationship with China, सीधा सीधी बात. Sino-Indian relationship. All right. See, India's relationship with China was very very good. In fact, very very good. But when China annexed Tibet in 1950, 1950 में जब चाइना जो तिब्बत के ऊपर मतलब अपना कब्जा कर लिया था कि तिब्बत मेरा है बोल के बोला था, तब ये जो इन दोनों कंट्री के बीच में जो डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज एक्सटेंडेड, हम दोनों के बीच में जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द चाइनाज एनेक्स ऑफ तिब्बत. अब हुआ क्या, इनिशियली द इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट गिव दैट मच ऑफ रिस्पॉन्स, कोई दिक्कत नहीं, लेट इट बी. बट व्हेन इंडिया गॉट द इंफॉर्मेशन दैट चाइनीज आर एक्चुअली सप्रेसिंग द टिबेटियन कल्चर, तिब्बत का जो कल्चर है उसको सप्रेस कर रहा था, और उन लोग का जो हेड था, यानी कि जो स्पिरिचुअल लीडर था वहाँ का, दलाई लामा हैड टू लीव दैट पर्टिकुलर कंट्री. तिब्बत को छोड़ के हमारे देश में आ जाना पड़ा फॉर एजाइलम, रेफ्यूजी बन के उनको रहना पड़ा इंडिया में आके. इंडिया को खुद बोला कि प्लीज़ हेल्प मी, दिस पीपल आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स इन तिब्बत. तब इंडिया का थोड़ा आँख खुले से, नो, दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज दे आर, तिब्बत इज़ आर नेबर. देन वाई शुड वी वाई शुड नॉट वी हेल्प देम. तभी उन्होंने उनको जगह दिया. जगह देने के साथ साथ चाइना को गुस्सा आ गया. चाइना सेड दैट यू शुड नॉट गिव एजाइलम टू दलाई लामा, उनको हमारे हवाले कर दो. चाइना सेड नो, you are suppressing Tibetan culture, you are aggressive towards Tibetan culture, and if we leave that person in your hand, you might kill him. So therefore we are not allowing this to happen. So a little earlier there was a dispute between India and China, कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ उस टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो तिब्बत जो एनेक्स हुआ था उसके कुछ दिन पहले एक देर वॉज अ फाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. मतलब ऐसा फाइट नहीं कि बंदूक गोली से, एक डिस्प्यूट हुआ था दोनों के बीच में, एक झगड़ा हुआ था. क्या चीज़ को लेके? बॉर्डर मैटर्स को लेके. इंडिया क्लेम दैट द बाउंड्री वॉज अ मैटर सेटल इन कॉलोनियल टाइम, मतलब जब ब्रिटिश था तभी ये बाउंड्री ये हम लोग का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इट वॉज ऑलरेडी सेटल्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम. तो फिर इसको लेके क्यों झगड़ा? तो China said that no, there is a problem. What problem? The problem is that there are two places which China said it is theirs. China बोल रहा था दो जगह उन लोगों का है. एक तो हो गया लद्दाख रीजन,
में जो अक्साई चीन नाम का जगह है, लद्दाख में एक अक्साई चीन नाम का एक एरिया है जिसको लेकर अभी भी सुनने में आ ही रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है लद्दाख को लेके. सो दैट पार्ट चाइना सेड दैट इट इज़ देयर्स फर्स्टली. और इस साइड ऑन द ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, अरुणाचल प्रदेश दे सेड दैट इट इज़ देयर. अरुणाचल प्रदेश नेम was NEFA at that point, North East Frontier Agency. They said that it is theirs. So in 1957 1959 मतलब चाइना तिब्बत एनेक्स करने के बाद, तिब्बत 1950 में लोग एनेक्स किया तो इंडिया का और चाइना का बीच में थोड़ा झगड़ा हो ही गया. उसके बाद मोटा मोटी आफ्टर 7 years एक्चुअली चाइना ऑक्यूपाइड अक्साई चीन. अक्साई चीन जो लद्दाख वाला एरिया था उसको क्या किया, वो लोग ऑक्यूपाई कर लिया. ऑक्यूपाई करने के बाद what they did was they built certain roads. Remember in mountain areas roads play a major role. अगर आप स्ट्रेटेजिकली रोड बनाते हो ना, इट कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव. आप लोग मूवी में भी देखोगे, एक टेंगो चार्ली एक मूवी आया था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. टेंगो चार्ली में देखना अजय देवगन था और एक बॉबी देओल था. दे आर गार्डिंग अ पर्टिकुलर ब्रिज और ये रोड, दीज आर वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग्स. ब्रिज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ब्रिज को छोड़ दिया देन यू माइट लूज एनी वॉर. देयरफॉर कंसिडरिंग दैट दे वर मेकिंग सर्टेन स्ट्रेटेजिक रोड्स देयर एंड इंडिया वाज नॉट हैप्पी. आप क्यों रोड बना रहे हैं, दिस इज नॉट योर एरिया, दिस इज आवर एरिया. देयर वाज अ रॉन्ग डिस्कशन बट दिस वाज नॉट रिजॉल्व. और थोड़ा बहुत फाइटिंग, इधर उधर गोला गोली, लोगों का बीएसएफ के जवानों का शहीद होना ये लगा ही रहता था. पूरा वर्ल्ड, the entire world's attention was on like अमेरिका एंड रशिया. अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में जो फाइट चल रहा था, कोल्ड वार, सबका टेंशन उधर था. इधर कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा था. देयर वाज नो अटेंशन बिटवीन दिस. दे वर ऑल मोर concentrated towards America and Soviet Union because America and Soviet Union are the two superpowers and they were having an internal fight between them. So everyone was more or less concerned towards that. It's like having an India-Pakistan match. It's like having an India match and you have Kenya match. कौन सा देखेंगे हम लोग? इंडिया पाकिस्तान मैच. जिम्बाब्वे केनिया का मैच कौन देखेगा? ये थोड़ा स्लो मूविंग मैच होगा, बड़े बड़े सितारे भी नहीं है उसके अंदर, कौन देखेगा उसको? So it happened like that. India and China fight was like in Zimbabwe and Kenya cricket match. इधर इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, मतलब रशिया एंड अमेरिका, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान फाइटिंग, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, इधर कोई ध्यान नहीं देना था. इन द मीन टाइम व्हाट चाइना डिड वाज दे अटैक्ड इंडिया 1962. अंदर घुस गया देश का अंदर घुस का मतलब एक हफ्ता कंटिन्यूसली अटैक किया. एंड देन अरुणाचल के थ्रू से दे स्टार्टेड एंटरिंग द एरिया. अरुणाचल पूरा घुस गया ये लोग, घुस के इवन एज पर रिपोर्ट्स, मतलब अनऑफिशियल रिपोर्ट्स, दे रीच टिल माकुम ऑल्सो, माकुम रेलवे गेट. तो बुक में लिखा हुआ नहीं इतना डिटेल में, तो मेरे दोस्त लोग कहते हैं, उनके दादाजी वगैरह कहते हैं कि बहुत अंदर आ गए थे. सो द सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम केम नेक्स्ट मंथ. एक महीना बाद फिर से दूसरा अटैक आया. But Indian forces we could block them in Ladakh area, but eastern side में हम लोग नहीं सका because Jawaharlal Nehru did not station any troops. उनको बार बार बोला गया था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को थोड़ा ध्यान दो. आज भी हम लोग को ध्यान नहीं दिया जाता है, पहले भी ये ध्यान नहीं दिया जाता था. यही प्रूव है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां पे ट्रूप स्टेशन नहीं किए. व्हेन continuously one after the other reports were received that China might attack India, and एक बार there was an attack one after the other, then why did not Jawaharlal Nehru send a troop or station a troop or made some strategic outpost in northeastern region, especially Arunachal Pradesh? This is a very controversial question. Because of that, Chinese army easily came inside our country and they attacked us. But after Indians retaliated and there was a chance of a big war, there was a humiliation actually, but later on when there was a chances of a war, United States of America, UN, they all intercepted. They came in between and said that कि बॉस ऐसा है कि फाइट नहीं करना है आप लोगों को, ये चाइना ठीक है छोड़ दे, चाइना को बोला छोड़ देने के लिए. अल्टीमेटली चाइना वेंट अवे, ना गोली चलाया ना कुछ किया, सीधा अंदर आया, फिर कुछ दिन बाद चला भी गया. So still like a mystery. Why did they come? Why didn't they attack? They could have easily annexed Arunachal Pradesh, Assam. आराम से लोग कैप्चर कर लेता. The kind of army they had at that time, and India was not prepared. India was prepared in Ladakh, but not in the northeastern part, Assam, Arunachal को सेव करने के लिए. So that was one very controversial time. Though in today's what to say,
scenario, India's policy with China is very strategic. Like we had very good relationship in terms of trade, बहुत अच्छा relationship था, but slowly and slowly when China started showing their aggressive side, India stopped a lot of trade. Big companies also stopped their trade agreement. They left the trade agreement. They did not sign the trade agreement. So there is a difference between India and China, especially now, because now our war is not with the gun. Our war is now with money, with economy, with trade and policy. So that's what our foreign policy with China actually was and actually is at this point. Anyone with any other doubt? You can send a chat message or you can ask switching on your audio. Anyone, please, you may ask. No doubts. All right. Difference is asking this. सी कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, यही तो डिफरेंस समझ में बोला था ना, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो बोला जाता है. कैपिटलिस्ट होता है क्या, दे गिव मोर इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, मोर इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स पीपल्स मनी. हाउएवर सोशलिस्ट इज लाइक द सोवियत यूनियन. यहाँ पे क्या है कि मिक्सचर, इट इज नॉट अ मिक्सचर लाइक इंडिया, इट इज लाइक मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस विल बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. सारा रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में होगा. गवर्नमेंट सब लोगों के लिए काम करेगा. गवर्नमेंट विल हेल्प द पीपल. गवर्नमेंट विल गिव फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, फ्री बुक्स, फ्री एम्प्लॉयमेंट, दिस एंड दैट, एंड गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग. यू हैव टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. Just like in China, just like it happened in Russia, Soviet Union earlier. Even जो क्या उगाना है फील्ड में, आपका पठार है, पठार में आप क्या लगाएगा, even that is also decided, but by whom? By the गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बोलता है कि क्या क्या आपको उगाना है. इतना लेवल तक गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है. बट एक ही बढ़िया चीज क्या है कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. एवरीवन विल गेट जॉब्स, दो यू विल नॉट गेट 2 लाख 3 लाख जॉब्स रुपए का जॉब्स, बट यू विल गेट जॉब्स, गुड जॉब्स यू विल गेट. एंड slowly and slowly they'll give you promotion, this and that. But however capitalist is different. capitalist में अलग चीज है, आप खुद करो. एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा एंटरप्रेन्योर को ज्यादा फोकस किया जाता है. प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा फोकस किया जाता है. नो मोर सिविल हॉस्पिटल, मोर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल. इस टाइप का थिंकिंग, मतलब आप थॉट को समझने की कोशिश करो. यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, थॉट्स को समझो. व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, क्या लाइन ऑफ थिंकिंग है इन लोग का. एक का थिंकिंग है खाली सिविल हॉस्पिटल और दूसरा का थिंकिंग है खाली प्राइवेट हॉस्पिटल. समझ में आ रहा है मेरी बात? दिस इज एन एग्जाम्पल, समझ लो, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. एक का थिंकिंग है खाली सिविल हॉस्पिटल सोशलिस्ट, और कैपिटलिस्ट का थिंकिंग है खाली प्राइवेट हॉस्पिटल. तो खाली अगर सिविल हॉस्पिटल होगा तभी तो दिक्कत है कि नहीं. सिविल हॉस्पिटल खाली सिविल हॉस्पिटल होगा, प्राइवेट नहीं होगा तो, और खाली प्राइवेट होगा तब भी दिक्कत है, बहुत कॉस्टली हो जाएगा. इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. यहाँ पे प्राइवेट भी है देखो और सिविल भी है कि नहीं. जब मन जाए सिविल में जाता है, जब जरूरत पड़ता है हम लोग प्राइवेट में जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड. आई होप यू अंडरस्टूड. नॉन कांग्रेसिज्म, अर्पित, नॉन कांग्रेसिज्म इज नथिंग बट नॉन कांग्रेसिज्म इज अ थॉट प्रोसेस वेयर द पीपल, द अदर पार्टीज वांटेड टू do anything against Congress. The activities were against Congress. Non-Congressism is nothing but standing against Congress. मतलब क्या होता है, whenever a party rules for a long time, it becomes a trend that party has to come down. It is like a trade cycle. एक गोल गोल घूमता है, कभी आप ऊपर कभी आप नीचे, कभी आप ऊपर कभी आप नीचे, साउंड वेव की तरह. You cannot stay in power always. At a point पब्लिक आपको हटाएगी. CPM was in कोलकाता, that is in West Bengal for 35 years. लेकिन 35 साल वो लोग राज किया, but at last Trinamool Congress took charge. So there is a time, the time will come when you have to leave the charge. Non-Congressism here means a thought process, a line of thought where the people were completely against Congress. कांग्रेस के अगेंस्ट में. आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था how the Bihar movement started, how in Gujarat they conducted re-election, how Jayaprakash Narayan conducted the biggest rally in India. So these were all done why? Against Congress, against Indira Gandhi. कि कांग्रेस को हटाओ, बाकी जो होगा होगा, पहले कांग्रेस इंदिरा ये लोग को हटाओ, बाद में देखा जाएगा जो होगा. देन दे केम टुगेदर. सेम अभी भी चल रहा है. नॉन बीजेपीजम भी चल रहा है आजकल, बिकॉज बीजेपी इज इन पावर फॉर लॉन्ग टाइम. तो आप जितना दिन पावर पे रहोगे तो आप लोगों का जो खामियां हैं, वट एवर रॉन्ग थिंग्स यू डू और वट एवर थिंग्स यू कुड नॉट कवर अप,
वो सब लोगों को आंखों में पड़ता रहता है. इनिशियली देखो, व्हेन द बीजेपी केम इनटू पावर, पीपल वर टॉकिंग गुड अबाउट बीजेपी and bad about Congress. But now things have changed. The people are talking wrong about BJP, good about other political parties. Why? Because time has passed and now we can see the lacunas, जहां कहां पे प्रॉब्लम है, कहां कहां पे छूट गया है काम. तो इन सब चीजों को जब हम लोग पॉइंट आउट करेगा, ऑटोमेटिकली इट बिकम नॉन बीजेपीज्म. मतलब पीपल आर कैंपेनिंग अगेंस्ट बीजेपी, पीपल आर टॉकिंग अगेंस्ट बीजेपी, डूइंग थिंग्स विच आर अगेंस्ट बीजेपी लाइन ऑफ थॉट्स. तो इसको बोला जाता है नॉन कांग्रेसिज्म, या फिर कोई भी पार्टी का वो लगा लो. मतलब इट इज गेटिंग अगेंस्ट कांग्रेस. उस टाइम की बात है, इट इज नॉट नाउ, उस टाइम की बात है. देयर इज अनदर क्वेश्चन, द अर्ली इनिशिएटिव्स ऑफ व्हाट, प्लीज स्पेसिफाई द अर्ली इनिशिएटिव्स ऑफ व्हाट. बी स्पेसिफिक. अर्ली इनिशिएटिव्स ऑफ कौन से चैप्टर का बात कर रहा है? चैप्टर का नाम बोलो या फिर पेज नंबर बोलो. चैप्टर 3 पेज नंबर 42. चैप्टर 3 पेज नंबर 42 आपके बुक का कि मेरे बुक का? एक सेकंड रुकिए. चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, राइट. पॉलिटिक्स ऑफ प्लान, रानी खान, रानी, ओके. चैप्टर 3 अर्ली इनिशिएटिव. आप किस चीज की बात कर रहे हो? अर्ली इनिशिएटिव लाइक, okay, understood. It was about 5-year plan बाबू. It's very easy. मैंने बताया था ना आप लोगों को. समझ गया. नेशनल प्लानिंग कमेटी या फिर जो नीति आयोग अभी बनाया प्लानिंग कमीशन में. सी, व्हेन अ कंट्री इज डेवलपिंग, कोई भी कंट्री, व्हेन अ कंट्री इज डेवलपिंग, द कंट्री मस्ट प्लान एवरीथिंग. एवरीथिंग मस्ट बी प्लान. सब कुछ का एक प्लानिंग होना चाहिए. सो इंडिया वॉज ऑल्सो इन अ डेवलपिंग स्टेज. तो इंडिया हैड टू डू समथिंग. एवरीथिंग हैज टू बी प्लान्ड, राइट. बिना प्लान के इतना बड़ा देश को संभालना मुश्किल था. 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, एंड as soon as we got independence, our first duty was to make India very strong economically, financially, in terms of defense and everything. So what did they decide was, our government made a committee called the Planning Commission. The Planning Commission was given the responsibility, in the early parts, Planning Commission was given the responsibility to plan for the country. देश को कैसे आगे लेके जाना है, हाउ टू टेक द कंट्री टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, इट हैज टू बी प्लान बाय द प्लानिंग कमीशन. क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, आप लोग डिसाइड करना. तो गवर्नमेंट उन लोगों को सवाल करेगी. So okay, they decided, they went on meeting after meeting, they did meeting after meeting, and finally they decided that we will do something called 5-year plan, FYP. ये हुआ था एक्चुअली अर्ली स्टेज हम लोग का था. अर्ली स्टेजेस में जो हुआ, they said that there are, we'll make 5-5-year plan. हर 5 साल में हम लोग प्लान को रिव्यू करेगा. पहला 5 साल we'll do something, then the next 5 years we'll do something else, and the next 5 years we'll do something else. So when the first 5-year plan came, they decided, they sat on a meeting and they decided कि first 5-year plan में क्या किया जाए. They did research, they did their study, then found that India was actually a poverty struck country. Poverty struck country मतलब यहाँ पे भुखमरी है, बहुत लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है. तो इन सच ए केस क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए? खाने पे. सो दिस टाइम द फर्स्ट 5-year प्लान, यानी कि 1951 से 1956, पहला 5 साल, प्लानिंग कमीशन बनने के बाद पहला 5 साल, द फर्स्ट 5-year प्लान विच स्टार्टेड फ्रॉम 1951 एंड एंडेड इन 1956, गिव मोर इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर. उन लोगों ने डैम्स बनाना स्टार्ट किया ताकि सिंचाई हो सके. मतलब सिंचाई मतलब आप लोग समझ में आते हैं, लाइक ब्रिंगिंग द वाटर फ्रॉम द डैम्स टू द irrigation lands, to the farming lands. वहाँ पे पानी की ज़रूरत है. to fulfill the demand for water, they made dams, they did various other agricultural activities which boost the production of agriculture, like introducing hybrid seeds so that the production increase, introduction of pesticide, insecticides, giving people loan for doing agriculture, introducing land reforms, this and that. They did one after the other. Land reform दो यहाँ पे नहीं हुआ था, बहुत बाद में हुआ था, but they did one after the other, एक के बाद एक काम कर रहा था, so that the agricultural sector go up. agricultural sector आगे जाएगा तो ऑटोमेटिकली फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. फूड प्रोडक्शन होगा तो हम लोग का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज भूखमरी यानी कि पॉवर्टी, वो सॉल्व हो जाएगा. ये मैंने जस्ट थोड़ा सा समरी बताया अबाउट फर्स्ट 5-year प्लान. ये अर्ली स्टेज,
ठीक है, फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान पे आया, दे डिसाइडेड अब तो 5 साल पूरा हो गया है, 5 साल अभी हम लोग क्या से व्हाट शुड वी थिंक नाउ, दे थॉट दैट फाइन व्हेन द पॉवर्टी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड वी शुड नाउ, दो पॉवर्टी प्रॉब्लम वाज नॉट सॉल्व्ड, ओके आई एम सेइंग इट इज सॉल्व्ड, इट वाज नॉट सॉल्व्ड, बाद में इसको लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ही हो कि 5 साल के अंदर खत्म कर दिया भाई, इतना खतरनाक कमिटी, 5 साल में पॉवर्टी खत्म, तो जो भी हो, they said that okay we have thought about poverty and all, now we will think about something else, think about what, we'll think about industry, because industry होगा तब देश का development होगा, so we'll think about industry, so next 5 year plan was completely based on industries, it was completely based on rapid industrialization, छोटे छोटे उद्योगों को बड़ा करना, जो उद्योग मर गए हैं उनको फिर से रिवाइव करना, और बड़े बड़े उद्योग जो स्टार्ट करने चाहते हैं, the people who wanted to start নতুন নতুন কিছুমান উদ্যোগ উঠিব বিচাৰিছে, নতুন নতুন মানুহে কিছুমান উদ্যোগ খুলিব বিচাৰিছে, সেইখিনি উদ্যোগক পইচা দি তেওঁলোকক হেল্প কৰা, সহায় কৰা, যোনখিনি উদ্যোগ মৰি গৈছে সেইখিনি আকৌ ৰিভাইভ কৰা, নতুন নতুন উদ্যোগক চান্স দিয়া, নতুন নতুন বস্তু খুলিবলৈ, এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ, নিউ নিউ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ माइट कम अप, मोर इम्पोर्टेंस वाज गिवन ऑन स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, कहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया जाए, कैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, दिस वाज मोर ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसके अंदर इंडस्ट्री, माइनिंग, पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था, सोशल सर्विस के ऊपर ध्यान दिया गया था, तो इस सब के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था. हाउएवर लेटर ऑन देयर वाज अ कंट्रोवर्सी, आप लोगों का वो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया है. इट्स लाइक कंट्रोवर्सी, लाइक 5 ईयर्स के अंदर क्या पॉवर्टी खत्म, second 5 year plan should have been based on agriculture. पहला 5 साल में क्या पूरा इतना साल का भूखमरी 5 साल में आप लोग खत्म कर दे, इज इट पॉसिबल? नो, बिना भूखमरी को खत्म किया, हाउ कैन यू स्टार्ट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री, व्हाट इज दिस? हाँ, ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. कोई बोल रहा था कि ऐसे ही चलेगा तो देश कैसे डेवलपमेंट होगा, हम लोग खाली एग्रीकल्चर करेगा तो. सो इट्स अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, दो दैट वी शुड नॉट थिंक मच अबाउट इट, बिकॉज जो गया वो तो चला गया. कंट्रोवर्सी बस याद रखना. एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? एनी अदर क्वेश्चन? Difference between one party dominance and one party system. See, one party dominance and one party system is more or less the same. One party dominance हम लोग बात करते हैं chapters के हिसाब से. If you talk about the chapter that we are studying now, like one party dominance here means dominance of Congress in the politics of India. Indian politics में कांग्रेस का जो डोमिनेंस है उसी को बोला जाता है वन पार्टी डोमिनेंस, जहाँ पे देयर इज नो पार्टी टू compete. आज की डेट में जैसे बीजेपी आ गया, देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉलिटिकल पार्टी दैट कैन compete विद भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी. दूर दूर तक कोई नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली नो वन. यस, न्यू पार्टीज आर कमिंग अप, दे सेड दैट दे विल गिव कंपटीशन टू भारतीय जनता पार्टी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आज के डेट पे देखो तो देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस. बिगेस्ट पार्टी दैट वाज बीजेपी, सॉरी एजीपी एंड कांग्रेस, बट बोथ आर डाउन. उन लोगों का हालत खराब है. हाउ विल दे compete विद बीजेपी? बीजेपी का तगड़ा ही हालत देख रहा है, हेलीकॉप्टर, प्लेन कहां कहां पहुंच जाते हैं. सिमिलरली एट दैट पॉइंट कांग्रेस का सेम हालत था. कांग्रेस वाज लाइक filled with intelligent people likes of Jawaharlal Nehru, then you have Indira Gandhi, what to say, अरे उनका नाम क्या था अभी भी, जो भीमराव, बी आर अम्बेडकर, मतलब एक एक से एक, राजेंद्र प्रसाद, जस्ट नेम इट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन नहीं था. देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वेयर बिहाइंड. महात्मा गांधी, मतलब नाम से ही पता चलता है क्या कंट्री है, क्या पॉलिटिकल पार्टी है. सो दैट वाज एक्चुअली पॉलिटिकल वन पार्टी डोमिनेंस. दैट पार्टी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. सो दिस डोमिनेंस इज एक्चुअली कॉल्ड वन पार्टी डोमिनेंस. एक पार्टी जब इसको डोमिनेट कर रहा था, इसको बोल रहा, इसको नाम दे दिया गया था वन पार्टी डोमिनेंस. वन पार्टी सिस्टम मतलब वन पार्टी सिस्टम, अगर आप पूछ रहे सिंगल पार्टी सिस्टम के बारे में, देखो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है कि जब कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ था, मतलब कांग्रेस डोमिनेटेड द एंटायर कंट्री, देयर वाज डेमोक्रेसी स्टिल देयर इन द कंट्री. अदर पार्टीज कुड हैव प्रोटेस्टेड, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था कांग्रेस के अगेंस्ट में. कांग्रेस, इफ द कांग्रेस डज एनीथिंग रॉन्ग, देन द कांग्रेस विल बी क्वेश्चनड. वी हैड द पावर, वी हैड द राइट टू डू दैट. बट इन वन पार्टी सिस्टम एक ही पार्टी हत्ता हड़ता करता विधाता, सब एक ही पार्टी है. जैसे इन चाइना, द चाइनीज गवर्नमेंट इज अ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम. सिंगल पार्टी मतलब एक ही पार्टी है, उसके अंदर कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है. इफ द बीजेपी डज एनीथिंग रॉन्ग, कांग्रेस विल रेज देयर वॉइस. इफ द एजीपी डज एनीथिंग रॉन्ग, देन
बीजेपी विल रेज वॉइस एंड वाइस वर्सा, ऐसा होता रहेगा। एक पार्टी गलत करेगा, दूसरा पार्टी आवाज उठाएगा, पब्लिक आवाज उठाएगा। हाउएवर इन सिंगल पार्टी सिस्टम दिस डज नॉट हैपन। सिंगल पार्टी सिस्टम मींस दैट पार्टी इज द हर्ता कर्ता विधाता, सब कुछ वही है, कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो पार्टी बोलेगा वही होना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम, और ये मौजूद है चाइना में। दिस हैपन्स इन चाइना एंड देयरफॉर चाइना कैन टेक डिसीजंस वेरी वेरी इजीली। In India, taking a decision, you have to think about a lot of things. You have to think about public, you have to think about the army, you have to think about the opposition parties as well. But वहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पे सीधा ठोको, कुछ गड़बड़ हुआ तो मार दो। साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया, किम होंग जुंग उंग, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया, उसका भी सिंगल पार्टी है। वो तो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा लेवल का सिंगल पार्टी है, इज वेरी वेरी डेंजर, बहुत खतरनाक लेवल ऑफ सिंगल पार्टी है। इदू किबा होले डायरेक्ट गुली ना मारे, हेरी मारी दे, टैंक और गुली तोप मारे, मानोहर का तोप मारी दिए, इट बेलेग लेवल और सिंगल पार्टी है। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल पार्टी सिस्टम, समझ गया। वन पार्टी डोमिनेट, एक पार्टी डोमिनेट कर ही सकता है, जस्ट द वे बीजेपी इज डोमिनेटिंग। तो क्या कांग्रेस प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है? कांग्रेस इज प्रोटेस्टिंग, पब्लिक इज प्रोटेस्टिंग, एजीपी इज प्रोटेस्टिंग, एआईयूडीएफ इज प्रोटेस्टिंग, आप इज प्रोटेस्टिंग। तो कोई रोक सकता है कि इन लोगों को? गणतंत्र है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, आप भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हाउएवर वन पार्टी सिस्टम मतलब वहां पार्टी ही एक है, कोई ऑपोजिशन पार्टी है ही नहीं, तो क्या सवाल पूछेगा और क्या धरना देगा? ऑलराइट, यस, एनी मोर डाउट्स? मिक्स्ड इकोनॉमी बताया ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, आप लोग को बताया मैंने कि दैट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मोर इंपॉर्टेंस गिवन टूवर्ड्स, वो एग्जांपल एक दिया था सिविल हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल का। कैपिटलिस्ट हो गया खाली प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में सोचेगा, एग्जाम्पल है हाँ। कैपिटलिस्ट हो गया खाली प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने के बारे में सोचेगा, और सोशलिस्ट वाला इकोनॉमी खाली सिविल हॉस्पिटल या फिर पब्लिक हॉस्पिटल बनाने के लिए सोचेगा, जहाँ पे सब कुछ फ्री हो। और मिक्स मतलब दोनों के बीच का, जो हम लोग हैं, हम लोग के यहाँ सिविल भी है, हम लोग के यहाँ प्राइवेट भी है। जिसको जरूरत है वो सिविल में जाओ, जिसको जरूरत है वो प्राइवेट में जाओ, सिंपल यही है मिक्स्ड इकोनॉमी। एक एग्जांपल दिया, पूरा समझाने जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो समझ लो कंसेप्ट यही है। वन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, वन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर्स। यस, एनीवन एल्स? शिफ्टिंग अलाउंसेस। हाँ हाँ, यस बोलो, क्या दिक्कत है? प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे मीन्स see, regarding planned holiday, the first and foremost thing you have to understand is industrialization. There is something called tax holiday also, right? There is something called tax holiday where industries are given relief from tax. However, planned holiday is completely different from that. If you have studied your previous chapters, especially the first, in which chapter did you find it? In which chapter did you find it? I think you have found it in the second chapter, वो development वाला chapter जहाँ पे planning commission है. Am I right? ओके ठीक है, मैं समझा देता हूँ, फिर आप लोग को जो देखना आप लोग देख लेना. Alright, planned holiday. Ruhi asked about planned holiday. Plan when you have. Is my audio clear? Hello. Hello. Is my audio clear? Let me check the chat message. 1 second. Yes, fine. So planned holiday, Ruhi asked what is planned holiday. See, when there is 2 5-year plan, ये टैक्स हॉलीडे भी होता है, सो कंफ्यूज मत करना टैक्स हॉलीडे के साथ. व्हेन देयर इज 2 5-year प्लान, जैसे एक 5-year प्लान हुआ फिर और एक 5-year प्लान होगा, देयर इज अ गैप बिटवीन 2 5-year प्लान, राइट? देयर इज अ गैप बिटवीन 2 5-year प्लान. जो गैप रहता है उसको बोलते हैं प्लान्ड हॉलीडे. मतलब प्लान्ड जो फर्स्ट 5-year प्लान और सेकेंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, कभी कभी क्या होता है दो प्लान के बीच में देयर इज अ गैप.
एक गैप रहता है दो प्लान के बीच में, ताकि सब कुछ अरेंज किया जाए, राइट। अब घर पे हाँ हाँ, देयर सपोज आपके घर पे शादी है किसी का, you conduct the marriage ceremony and then you have another marriage after 2 or 3 days. You keep a gap, right, so that you can arrange everything. Similarly, when you are doing a particular planning, एक 5 साल का प्लानिंग खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 5 years का प्लान करना, so we keep a year or two a gap, एक गैप रखते हैं आप लोग, so that gap is actually called planned holiday. Yes, what is shifting alliances in world politics? शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हम लोग तो गया ही नहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बस वी आर नॉट स्टडिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स. कौन सा चैप्टर में मिला आपको? इन व्हाट सेंस यू आर आस्किंग, रिगार्डिंग टू विच कंसेप्ट यू आर आस्किंग शिफ्टिंग ऑफ अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स? वी आर तो टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स नाउ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला बुक तो हम लोग नहीं पकड़ा है. प्लीज क्लैरिफाई व्हाट यू आर आस्किंग. Anyone else? Is chapter 4 which part? Shifting of alliances. I can't find anything called shifting of alliances. Chapter 4 is all about India's external relationship. Oh, that part. That is a finishing part. I understood. No need to get into that. No need to get into the shifting alliance in world politics, because for this you must have the knowledge of USA and USSR. You must have the knowledge of NATO and Warsaw Pact, what happened during Cold War. तो वो सब आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत, तब आप लोगों को मतलब एक बेस बन जाएगा उसको समझने के लिए. तो दैट डोंट वरी अबाउट दैट, इट विल बी कवर्ड लेटर व्हेन वी डू पार्ट ए. उसके अंदर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग जो समझेगा विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस पार्ट ऑल्सो. नो नीड टू गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू दैट. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस चैप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एनीवन एल्स? Yes, I am keeping a screenshot of your questions in case you need any notes. Yes, I have a question called white revolution. See, why जैसे green revolution होता है ना, green revolution is about plants and trees, hybrid seeds, pesticides in order to increase the production of wheats and vegetables and everything. Same way, white revolution is about milk. Alright, that is increasing the production of milk. कुछ स्टूडेंट घबरा जाता, बोलते सर ये आटा और मैदा के साथ रिलेटेड है क्या? नहीं, ये आटा मैदा के साथ रिलेटेड नहीं है. दिस इज रिलेटेड टूवर्ड्स मिल्क. अब क्या है, सी देयर वाज अ विलेज कॉल्ड आनंद इन गुजरात वेयर इट ऑल स्टार्टेड. Amul was one of the major breakthrough of this white revolution. We have 5 more minutes in this class, so I'll finish it up. So Amul, उसमें क्या हुआ था कि the company gathered milk from that village and they created a company called Amul under GCCMF, Gujarat Cooperative Society, something I forgot the name, Federation. So they collected the milk. Milk was very much required for the upbringing of the चिल्ड्रंस, और मिल्क उतना प्रोडक्शन मिल नहीं रहा था हर जगह पे. तो ऐसा इसको क्या करना था, प्रिजर्वेटिव्स डाल के या फिर क्या कहते हैं उसको, बॉयल करके पेस्चराइज करके उसको पैकेटिंग करके पूरा इंडिया पहुंचाना था ताकि सबको दूध मिले. इसीलिए दे स्टार्टेड अ कैंपेन वेयर मिल्क्स वेयर प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेरियस विलेजेस. जहाँ पे सरप्लस दूध था वहाँ से विलेजेस से ला के उसको पेस्चराइज करके पैकेटिंग करके पूरा इंडिया में भेज रहा था. ये था वाइट रेवोल्यूशन, जहाँ पे दूध की जो स्केर्सिटी है, द स्केर्सिटी ऑफ मिल्क वाज फुलफिल्ड. दिस वाज कॉल्ड एक्चुअली वाइट रेवोल्यूशन. स्टार्टेड इन गुजरात एंड दिस गेव टू द लेड टू द राइज ऑफ द कंपनी कॉल्ड अमूल.
Yes, the aftermath of what, Arpit? Aftermath of what? We have only 3 minutes left in the class. The class will close automatically. Aftermath of what? Be quick. All right, we'll take your doubts in the next class. Not doubts, actually, we'll start, continue the next chapter. The same way, please give your feedback. Was the audio class better than the video one? मतलब वीडियो में क्या होता है, किसी का वीडियो आता है, किसी का नहीं आता है, ना मेरा आता है, कभी मेरा वाला आवाज में दिक्कत होता है. आई होप टुडेज क्लास वाज मच मोर क्लियर. डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू कैन यूज योर चैट box also. If you find it good, if you find it effective, please leave a message in my WhatsApp so that we can continue with this kinds of classes, so that we do not consume too much of data, and we also have a interactive session also. All right, we'll meet in the next class. Please do not forget to leave your feedback. Thank you.